Hello students, today I have a riddle. Are you ready to solve this riddle? Okay, good. Let us go. I am an animal you might love, but I am too big to be your pet. I have an extremely long trunk and it said I never forget. I am a type of animal, but I am not one which is furry. I have grey skin and a long trunk and two tusks made of ivory. Who am I? Yes, guess. Who am I? Well, you guessed correctly. I am talking about an elephant. Elephant is the largest animal. It is very strong animal. So, today we are going to learn the lesson A Day with Nandu from class 4th EVS. Now, let us see. Nandu was a baby elephant. He lived with his amma and a very big group of elephants. Did you know a group of elephants that live together is called a herd? Elephants' herds are led by the oldest female member. Nandu's herd had an oldest female member was his Nanima, and so she was the leader of the herd. An elephant's herd is made up of mainly female elephants and their babies. Female elephant is called cow. Male elephant is called bull and young elephant is called calf. Elephants' babies are about 100 kgs at birth and can double in weight in 3 to 4 months. Elephants move in a group. A group of elephants is called herd. A herd of elephants has baby elephants and female elephants. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave the herd and move alone. An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. Elephants have big ears that work like fans and help to keep them cool. Young ones of elephants love to play in water. Like elephants, other animals also live together in groups. They move around in groups in search of food. Did you know elephants are herbivorous? Elephants eat roots, grass, fruits, leaves, twigs and bark. Did you know an adult elephant can eat about 100 kgs of leaves and twigs and drink 200 liters of water in a day? Now observe this picture. Elephant has big ears like fans. They have tusks and very long trunk also. It is the strongest animal. Elephant's trunk is a combination of nose and upper lip of elephant.
trunk helps them in smelling, breathing, trumpeting, drinking, and picking up things. African elephants have teeth that are called tusks that grow continuously throughout their life. They use them to take the food and water and remove the barks from trees. Besides hearing, elephants use their ears to keep their body cool. They use of them like fans. The ears of the elephants are very big in size and can trap most sounds, and thus can hear sounds from up to 4 kilometers away. I hope you enjoyed this lesson and learned a lot about elephants. Now let us see question answers. Question 1 is, Nandu is only 3 months old but he weighs 200 kilograms. What is your weight? Answer is, my weight is 20 kg. तो यहाँ पे ये बताया है कि नंदू तो 3 मंथ्स का था, तब भी उसका वेट जो था 200 kg था. तो आपका वेट कितना है? तो यहाँ पे आपको अपना वेट लिखना है. तो इस बच्चे का वेट 20 kg है, तो इसने यहाँ पे लिखा है माई वेट इज 20 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट. आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके वेट के ऐसे कितने बच्चों का वेट ऐड करने पे, प्लस करने पे नंदू का वेट बनेगा. आंसर इज, इट इज फाउंड दैट द वेट ऑफ नंदू इक्वल्स द सम ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट. तो इस बच्चे का वेट कितना था? 20 kg. तो उसके हिसाब से उसने ये आंसर लिखा है. आपको अपने वेट के हिसाब से आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. अगर आप नंदू की तरह हर्ड में रह रहे होते तो आप क्या क्या करते हैं? आंसर इज, इफ आई वर नंदू लिविंग इन अ हर्ड, आई वुड प्ले, ईट एंड डांस एन एंटायर डे. Later the night I would sleep with my mother. अगर मैं नंदू की तरह हर्ड में रहता तो मैं वहाँ पे खेलता, खाता, डांस करता और रात में अपनी मम्मी के साथ सो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली. एलिफेंट हर्ड में जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वही सारे डिसीजन लेती है. तो आपकी फैमिली में कौन लेता है? Answer is, both my parents together take most of the decisions in my family. मेरी फैमिली में मेरे दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर मिलकर डिसीजन लेते हैं. तो ये आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? नंदू वही करता था जो उसको पसंद था. आपको भी इस तरह से एक पूरा दिन मिल जाए अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए, तो आप क्या क्या करोगे? आंसर इज, आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, सिंग, डांस, टेल एंड लिसन टू फनी स्टोरीज, ईट एंड हैव लॉट्स ऑफ फन. इफ आई कुड स्पेंड अ होल डे विथ माई फ्रेंड्स, मैं गेम खेलना चाहूँगा, डांस करना चाहूँगा, गाना गाना चाहूँगा, फनी स्टोरीज में बताऊँगा भी और सुनूंगा भी, और मैं खाऊंगा और बहुत सारी मस्ती करूँगा. तो ये एग्जाम्पल है. आप क्या करना चाहते हो ये आप लिखिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. एलिफेंट की तरह और कौन से एनिमल्स है जो हर्ड में रहते हैं? आंसर इज, अदर एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स आर डियर, काउज, हॉर्सेज, ज़ेब्रा, sheep, penguins, rhinos, etc. तो ये एनिमल्स भी एलिफेंट की तरह ही हर्ड में रहते हैं. हर्ड मीन्स क्या? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट, डियर. डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी ग्रुप में रहते हो? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको ऐसे साथ में रहना पसंद है? वाई वुड यू लाइक? क्यों पसंद है? और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप, अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है? तो यहाँ आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं है. Here is the example answer. Why I would like?
We can talk to people as they are around us. We can share our feelings instantly. Cost of living can be reduced by sharing things. We feel safer and secure when in a group. We can help and get help to do different tasks. And why I would not like? It can lead to quarrels and fights over small things. There is less or no privacy. Food and space is required for each person in the group. We have to adjust ourselves according to others. Difference of opinions can lead to separation of the group. तो ये आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. Next question is, how do elephants feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. अगर एलिफेंट्स को चेन से बांधा जाए तो उनको कैसे फील होता होगा? तो उनकी फीलिंग्स आपको यहाँ पे शेयर करनी है, इट मीन्स लिखनी है. तो सोचिए एलिफेंट्स को अगर हम चेन में बांधते तो क्या होगा? आंसर इज, व्हेन एलिफेंट्स आर केप्ट इन चेन्स दे फील रिट्रेन्ड एंड हेल्पलेस टू डू एनीथिंग. दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड अनहैप्पी. Due to this, elephant may react aggressively or they lie down around feeling depressed for their lack of movement. I strongly feel that just like any other living being, elephants too desire freedom and they should not be chained. तो एलिफेंट्स को चेन से बांधना ये बहुत ही गलत होता है. वो इससे बहुत ही सैड हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे और उनसे उनका फ्रीडम छीन जाएगा. तो उनको हमें कभी भी चेन में बांध के रखना नहीं चाहिए. तो आपको ये फीलिंग्स उनकी सोचनी है कि किसी भी एनिमल को अगर हम चेन से बांधते तो उन पे क्या गुजरती होगी और वो क्या सोचते होंगे. Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? क्या आपने कभी एलिफेंट पे बैठ के सवारी की है? कैसे फील हुआ था आपको? आंसर इज yes, I have taken a ride on an elephant and it felt thrilling and exciting. हाँ, मैं एलिफेंट के ऊपर मैंने राइड की है, सवारी की है और मुझे बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आया था. तो यहाँ आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इज, विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? राइट देयर नेम्स. आप किस किस एनिमल्स पे बैठे हो उनके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं. आंसर इज, आई हैव सैट ऑन हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड बफेलो. मैं हॉर्स पे भी बैठा हूँ, एलिफेंट पे भी बैठा हूँ, कैमल पे भी बैठा हूँ और बफेलो पे भी बैठा हूँ. अब इसमें से आप सच में कौन से एनिमल्स पे बैठे हो ये आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे आपके आसपास, बुक्स में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, मूवीज में भी देखा होगा. कुछ एनिमल्स अकेले रहते हैं, कुछ एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं. तो इनके बारे में आपको फाइंड आउट करके लिखना है. किसी एक एनिमल के बारे में भी आप लिख सकते हो. Here is the example answer. I majorly see dogs around me. They are 4-foot animals who sleep during the day for 4 to 5 hours. They eat meat, rice, milk, bread, etc. As they are active during the night, they give security from thieves and also keeps an eye on our homes. If anything abnormal happens, they would attack or start barking loudly. Female dogs give birth to babies which are called puppies. तो जैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऐसे आपने जो भी एनिमल देखा है या देखते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो. तो जरूरी नहीं कि डॉग के बारे में ही आपको लिखना है. जो भी एनिमल आपने ऑब्जर्व किया है, मूवी में देखा है, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो. Now the next question, think and write. Why do you think the egret is sitting on the buffalo? तो पिक्चर में देखिए बफेलो के ऊपर एग्रेट बर्ड बैठी हुई है. तो ये उसके ऊपर क्यों बैठी होगी? सोचो जरा, क्या रीजन हो सकता है?
Answer is the main reason why an egret sits on a buffalo is to eat flies, grasshoppers and other pests on the buffalo. By this way, the egret gets its food as well as the buffalo gets rid of germs and dirt. Hence, it is a mutual benefit for both. तो मेन रीजन क्या है एग्रेट बैठता है बफेलो के ऊपर? वो बफेलो के ऊपर बैठे हुए फ्लाइज को, ग्रास हॉपर्स को खाता है, जिसकी वजह से एग्रेट को भी फूड मिलता है और बफेलो को भी आराम मिलता है जर्म्स और डर्ट से। तो ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है। Next question. Have you seen any animal riding on another animal? Write its name. The animal which is riding and the animal which gives the ride. क्या आपने किसी एनिमल को दूसरे एनिमल के ऊपर बैठ के राइडिंग करते हुए देखा है? तो आपको उस एनिमल का भी नाम लिखना है जो राइड कर रहा था और दूसरे एनिमल का भी नाम लिखना है जिसके ऊपर वो बैठ के राइड कर रहा था। Answer is yes, I have seen an oxpecker sitting on a zebra. Hence the animal which is riding is the oxpecker. तो इस बच्चे ने ऑक्सपेकर को ज़ेब्रा के ऊपर बैठे हुए देखा है। तो इसने आंसर ये लिखा है कि हाँ, मैंने ऑक्सपेकर को ज़ेब्रा के ऊपर बैठे हुए देखा है। एंड हेज द एनिमल विच इज राइडिंग इज द ऑक्सपेकर एंड द वन विच गिव्स अ राइड इज ज़ेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग? हम कौन से एनिमल्स का यूज करते हैं राइडिंग करने के लिए? आंसर इज एनिमल्स यूजिंग फॉर राइडिंग आर हॉर्स, कैमल, डोंकी एंड याक। है ना, हॉर्स कार्ट आपने देखी है, या हॉर्स पे बैठ के पहले के ज़माने में राजा भी जाते थे, या हम लोग भी हॉर्स राइडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? कौन से एनिमल्स का यूज किया जाता है लोड को कैरी करने के लिए? आंसर इज फॉर कैरिंग लोड्स बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, डोंकी, याक एंड कैमल आर यूज। है ना, ये एनिमल्स जो है लोड को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बुलक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, और डोंकी को भी हम लोड्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट डू दे से? डिस्कस। यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड? आपने अब तक बहुत से एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने कभी सोचा है इनमें से कुछ एनिमल्स सैड क्यों लगते हैं? यस, सोचिए। Answer is some the animals are sad as they are separated from their natural habitats. They are captured and put in circuses to entertain people where they are brutally treated to obey their master's order. Hence, these animals are feeling sad because they have lost their freedom to live or survive. आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जो बहुत ही सैड दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर हैं। जो नेचर ने उनको घर दिया था उससे वो दूर हो गए हैं, क्योंकि लोग उनको पकड़ते हैं और सर्कस में डालते हैं और उनका यूज़ क्या करते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और उनको अपने मास्टर के ऑर्डर जो है फॉलो करने पड़ते हैं। इस तरह से उनका फ्रीडम पूरी तरह से खो गया है, इसलिए वो एनिमल्स बहुत ही सैड होते हैं। How do you think they are different? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. तो सोचो कैसे ये दोनों अलग अलग है। वो मंकी जो लोगों को डांस करके एंटरटेनमेंट करते हैं, और या वो मंकी जो फ्री रहते हैं, जो बिल्कुल अपने मन से जो करना है वो करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, सोचिए ज़रा। Yes, they both are different. The monkeys that are free are happier in comparison to those that dance to entertain people. Capturing animals and using them for our own benefits is against their wish. It makes them feel unhappy, depressed to the fact that they are being instructed by a human. हाँ, ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि जो मंकी फ्री है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कंपैरेटिवली जो मंकीज डांस करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का,
तो कौन से मंकीज हैप्पी हैं? जो फ्री हैं। तो इस तरह से एनिमल्स को कैप्चर करना, उनको यूज करना उनके विश के खिलाफ, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसकी वजह से वो बहुत ही अनहैप्पी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और हम ह्यूमंस को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सी यू अगेन विथ a new topic. Take care and have a nice day. Bye bye. Thanks for watching. Thanks for watching.